I would only say that it's a very interesting time, and कहानी तो इसलिए नहीं बता सकता because आप लोगों को स्टडी में भी आना है। फिल्म की सस्पेंस होगी तो I'm sure अभी से सस्पेंस और बिल्डअप शुरू हो गया है। And we are introducing this film. We have a very good team of enthusiastic producers and enthusiast actors, and we are introducing Siddharth in this film, who is son of famous Dilip Sanjay. And I'm very thankful to Dilip Sanjay to have a trust on me and give me this responsibility to launch it. It's a very big responsibility. I hope I will be successful. Like my launch movie because when I went to the speed test and someone had saw my photograph and he said it was a very funny photograph. I mean, I have a cigarette in my mouth and I'm posing like this, and he saw it. He's like, all this boy, I gave the speed test, and then he liked it a lot. I think I was lucky. He liked my acting, and then he gave me a narration of like a part of the script. और मुझे इतना मजा आया सुन के, I'm like, I have to do this. You know, it's a very awesome role, very great talent. I can't tell you too much about it. When I told my dad, he said, just jump and do it. So I think I'm very fortunate this whole thing happened. I really like to thank sir for this opportunity and the writer sir for writing this whole piece about making it. And I of course work hard as an actor to prove myself. I'm sure I will love this. Thank you and तैयारी करना देना है आपसे राजीव। I was lucky. I kept my hair long because I performed on stage. तो पहले से कुछ टेलीविजन चल रहा था। And I kept my hair long because I performed on stage as video tha. So it just saves time from wearing a wig. But the hair work, the look work, most importantly, sir ke saath mera bahut meetings thi. Because he was a Manchurian character. It's not only like filled with one emotion. बहुत emotion है. He's the hero of the film, but he's also got a lot of dark shades to him. I read with my two actors once, but I've spent a lot of time meeting with her. Yeah, we try each other. And we want all of you to say something about the role or about the project. जैसा कि आपने एक बात बोली कनेक्शन, ये कनेक्शन में ही खेल है पूरा। और ये जैसे ही मैं राजेश सर से मिला तो वो कनेक्शन फील हुआ मुझे, और इनको भी लगा कि हाँ यही है मेरा इसमें नाम डीके है और ही इज ड्रग माफिया, ड्रग लॉर्ड, तो उस तरह का रोल है जो कि मैंने आज तक कभी प्ले नहीं किया। मैंने हमेशा पॉजिटिव और इस तरह के कैरेक्टर्स किए। So good range for you as an actor. Yes, I always look for it. मतलब कोई अच्छी सी रेंज मिले मुझे, अच्छा परफॉर्मेंस वाला। सर मुझे बोर्ड पे लाया। एक्चुअली मुझे बोर्ड पे लाने वाला मेरा दोस्त है अर्जुन। He is one of the producer. तो he called me, he said कि करेगा क्या भाई एक काम है। मैंने बोला क्यों नहीं करूँगा, मिलते हैं। सर से मिला तो सब क्लियर ही हो गया, पिक्चर इन्होंने पूरा क्लियर कर दिया। कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा नहीं पता था क्योंकि बहुत ही फालू टाइप का कैरेक्टर है, वो आप लोग देखिएगा तब मजा आएगा आपको। That's right, and now we'd like to hear from our in the frame. And Hasan Qureshi ji, आइए please, आप भी मंच पर आ जाइए because सबसे अच्छा पड़ोस के साइड का है, माशाल्लाह ये पड़ोस अच्छा है और मैं मुबारकबाद देने आया हूँ पूरी टीम को। जी ये फिल्म बनती है, 90 परिवार चलते हैं, तो हमारी शुभकामना है कि मेहनत से फिल्म बनती है और आप तो हमेशा माशाल्लाह हिंदी भी अच्छा बोलती हैं, उर्दू भी अच्छा बोलती हैं, इंग्लिश की दिल की बातें अच्छा करती हैं आप, और मेरे बालों पे बहुत कमेंट्स करती हैं। तो ये ओरिजिनल है, बिग नहीं है। ये अलग बात है कि मैंने बिग बॉस में काम किया, सुनील पाल का बिग है, मेरा बिग नहीं है, मेरा ओरिजिनल। आपके चेहरे पे हंसी, आंखों में नमी है, आप टाटा का नमक खाएं, आप में आयोडीन की कमी है। एहसान जी के साथ जब भी हम मंच पर होते हैं तो हमारी ये दोस्ती चलती रहती है। हेलो एवरीवन, बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है हमारा और
डे कि ये लॉन्च होगा इन अ बिग वे, और हमारी शुभकामनाएं, हमारा आशीर्वाद इनके साथ है। और इसका बाप तो मेरा भांजा था विनोदन, और ये अब लॉन्च हो रहा है तो ऑब्वियसली मेरे भांजे का बेटा लॉन्च हो रहा है, तो मामा तो बहुत ग्रैंड मामा बहुत खुश होगा। एंड वी आर डूइंग अ प्ले टुगेदर। हम लोग एक प्ले कर रहे हैं जो इनके पिताश्री ने डायरेक्ट किया है, कॉल्ड महाभारत। महाभारत का एपिक टेल हम लोग अबाउट काफी शोज, 22 शोज हम कर चुके हैं ऑलरेडी दिल्ली एंड जयपुर, और अभी हम बॉम्बे में आ रहे हैं सितंबर में 14-15 को। उसमें मेरे छोटे बच्चे ने इससे बहुत ही अच्छा रोल किया है, छोटे दुर्योधन का। उसके बाद पुनीत जी टेक्स ओवर, और जब रिहर्सल ही हो रही थी अबाउट अ ईयर बैक, तो मैंने पुनीत को बोला, पुनीत योर सन इज आउटस्टैंडिंग and he deserves all the kudos and all the luck, and he deserves everything possible from this industry, and I think rightly इनके प्रोड्यूसर बहुत अच्छे हैं। और लास्ट डील इज द नेम ऑफ द फिल्म, आप लोग याद रखिए इसको, आप भरपूर आशीर्वाद दीजिए। एंड आई वुड अपील टू ऑल माय भांजा एंड भांजीज to give him आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच। और मैं स्पेशली दिल्ली से आया हूँ। मैंने दिल्ली में महाभारत का मंचन देखा था, और जब मैंने दुर्योधन का प्रारंभ में अभिनय देखा तो मैं स्तब्ध था कि इतना अच्छा अभिनय कोई नया कलाकार मैं सोच भी नहीं सकता था। जितना सिद्धार्थ ने अच्छा अभिनय वहां पे किया था, बाद में पुनीत जी ने किया था। पुनीत जी को सब जानते हैं, गुड्डी पेंडल जी से अपेक्षित था कि इतना अच्छा अभिनय करेंगे ही करेंगे, लेकिन वास्तव में मेरे पास शब्द नहीं है इनकी प्रशंसा करने के लिए। सिद्धांत ने इतना अच्छा अभिनय किया था, और मेरी शुभकामनाएं सदैव साथ हैं। वास्तव में प्रतिभा संपन्न बच्चा है, और उन्नति के सारे योग मुझे दिखाई देते हैं, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। थैंक यू वेरी मच। श्री उस सर ने मुझे सडनली डूरिंग वर्कशॉप बोला कि तुम्हारा एक डांस भी होगा। You know, but that would also be a challenge. Because see, I know how to dance, but overall, usual role is a very dark and sort of shaded role. I think that's what Sir told me, that there might be a sequence. So I'll have to specially, of course. So you're looking forward to that as well. You are, of course. Yes. And क्योंकि आप already you're a theatre actor, so obviously you're always ready to perform. तो क्या आप अपना कोई favorite dialogue हमारे साथ share करना चाहेंगे? It can be from any. It's from my play. It's in a poetry form. रानी सर, आपकी इजाजत हो तो? मेरे युग को मेरे नाम से आगे जाना जाएगा। ये पांडव हुए थे दुर्योधन के युग में, इतिहास ये बदलाएगा। Means that in the end, and then he comes as the older Duryodhan. So this is the last line of my, of course, the poetic things. I can't say the whole thing here. That is one thing, that in the end he believed that, अगर आप देखें तो महाभारत को दुर्योधन की वजह से याद रखते हैं। For sure, I think that. नमस्कार। एक बार नमस्कार की निकाले हो जाए from this great voice, amazing. मुझे मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो डायरेक्टर हैं, राजेश जी, सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। और जब सिद्धांत ने मुझसे आगे कहा कि मैं एक फिल्म के ऑडिशन के लिए गया था, मैं करके आया हूँ और मैंने रिलेशन बहुत अच्छा लगा, तो एक एज एक पिता होने के नाते डेफिनेटली बहुत ही खुशी महसूस होती है। कि सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई कि इसने अपने दम पर, अपने बल पर खुद गया, ऑडिशन दिया और जाके खुद ये मेहनत करके आया है। तो दैट वाज, ये मेरे लिए बहुत ही टचिंग मोमेंट था। और तो मैंने कहा कि बेटा गॉड ब्लेस यू, आप 5 साल से थिएटर कर रहे हो, यू आर डूइंग थिएटर विद मी, बाहर भी आप कर रहे हो, और आपको ये अगर अपने बलबूते पे आपने ऑडिशन देने के बाद आपको सिलेक्ट किया गया है, दैट मीन्स यू हैव अराइव्ड।
और ईश्वर आपको शुभकामनाएं दे, भगवान करे आप तरक्की करें। वेरी हैप्पी। फिर उन्होंने मुझे आइडिया सुना, मुझे लगा ये क्राइम थ्रिलर जॉनर है और ये करना चाहिए। और प्लस एबल हैंड्स के हाथ में, राजेश जी को कौन नहीं जानता, बढ़िया इन्होंने काम अवार्ड में फिल्म बनाई है। तो इज कहते हैं एक भी सीजन्ड डायरेक्टर हैं, काम कर चुके हैं, तो विश देम ऑल द बेस्ट। तो इस APA Films and Entertainment presents Last Day, directed by Rajesh Rathi. Written by Rajiv Yogendranath and our Outbadhari, Dr. Yogesh Nakhani from Bright Outdoors. Best wishes to our amazing team, our producers, co-producers. Everyone, this is the official launch of Last Deal, starring Mr. Puneet the Star's son. दिवेश भाई, अपॉर्चुनिटी मिली है स्टार्ट में, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग रोल है। ये कोई एक जो टिपिकल लॉन्च पैड का रोल होता है ना, कि आप फिल्म में स्केटिंग भी कर रहे हो, घोड़े भी चला रहे हो, शर्ट उतार के एक्शन भी कर रहे हो, ये वैसा रोल नहीं है। एक ब्रेक डांस भी है, ये ऐसा है ही नहीं। दिस इज़ अ वेरी डार्क रोल, एक ग्रे कैरेक्टर है, बट ही इज़ द लीड ऑफ द फिल्म। मतलब जैसे नवाज सर हैं, इरफान खान सर हैं, इन्होंने जैसे रोल्स अब जाकर किए हैं, ये वैसा रोल है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मैंने 5 साल थिएटर किया, लेकिन बिकॉज ये चैलेंज है, इसमें करने में मज़ा आ रहा है। मुझे काफ़ी कन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स अक्रॉस आई पास्ट में, बट जब मैंने ये सुना, मैंने बोला हाँ मुझे ये करना है, यू नो। जी, उन्होंने भी मुझे यही कहा कि कोई भी ऐसा रोल मिले जहाँ आपको लगता है कि हाँ इसमें मेरा परफॉर्मेंस का स्कोप है, आप कर लो। क्योंकि उन्होंने मुझसे ये कहा कि आपका जो लॉन्च होता है ना, वो आपकी एक जर्नी की शुरुआत है। लोगों को क्या लगता है कि मेरा लॉन्च मेरी डेस्टिनेशन है, मतलब मुझे लॉन्च मिल गया, सारी तैयारी कर ली, हो गया उसके बाद। सो दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ अ जर्नी। उन्होंने बस ये कहा ये शुरुआत है, पूरी मेहनत करो कि आगे इसकी बुनियाद पर आपको और काम मिले। और इस रोल में इतने शेड्स हैं कि मुझे बहुत पूरी आशा है कि जो फिल्म है उसका नाम है लास्ट डील, लेकिन इसके बाद हमें बहुत सारी डील्स मिलेंगी अच्छे काम की। तो आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। जी, डिफ़िकल्ट ये है कि ये कोई कन्वेंशनल कैरेक्टर नहीं है। जैसे एक होता है ना कि हाँ ये हीरो है, ये विलन है, ये है पिक्चर का हीरो, लेकिन ये बहुत विलन वाले काम कर रहा है। मतलब इसमें ही इज़ टॉर्चरिंग पीपल, और वो एक एंटी हीरो का कैरेक्टर है, आप समझ रहे, एक लेयर्ड कैरेक्टर है। तो काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि ऑडियंस आपको हेट भी नहीं कर सकती, एट द सेम टाइम आपको कन्विंसिंगली प्ले करना है। तो काफ़ी चैलेंजिंग रोल था। कोई फिल्म जो
जी देखिए, महाभारत तो उनका सब जानते हो, टीवी शो है। बॉर्डर जो उन्होंने की है, एक स्टेज पे जब मेरी वो उम्र होगी, ही वॉज 42 इन बॉर्डर, आई वुड लव टू डू एक अच्छी वॉर फिल्म। एंड उसके लिए मुझे वर्क, अपने ऊपर वर्क भी बहुत करना पड़ेगा ऑफकोर्स, उतनी पर्सनैलिटी बनाने के लिए। एंड उनकी एक फिल्म थी अशांत, जिसमें अक्षय कुमार सर थे, और उसमें वो फिल्म उस टाइम पे केशुराम सर ने बनाई थी। उसमें जो उनका पोर्ट्रेयल था एक नेगेटिव कैरेक्टर का, आई वुड लव टू डू अ गुड रोल लाइक दैट। Yes, thank you. हाँ जी, थोड़ा पीछे आइए, सब लोग पीछे आइए प्लीज। ओ मैडम, पीछे आओ ना यार। And the director Rajesh K. Rathi sir, we'd like to have you on stage for this photograph. And our producers. Thank you. पुनीत जी हम लोग का कई सालों का रिश्ता है और इनका बेटा लॉन्च हो रहा है, तो गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। मेरे लाइक कुछ भी होगा इसमें तो मैं जरूर करूँगा, एकदम आंखें भर के करूँगा। और इसके बहुत सारे रवि सिंह की व्यवस्था थे, उनके साथ कुछ और है, और राजेश जी का ऑल द बेस्ट। एंड भगवान ने लास्ट दिन बहुत सारी के बारे में बताएं, खुशी है, क्या कहना चाहिए? जी बहुत खुशी है भाई। पुनीत सर साहब को बचपन से हम देख रहे थे, अमिताभ बच्चन साहब का कूली फिल्म में जो फाइट सीन फिल्माया गया था, पुनीत सर रातों रात सुपरस्टार बन गए थे, क्योंकि इतने बड़े सुपरस्टार से फाइट किए थे। फिर उस सुपरस्टार को ऐसी चोट लगी कि पूरी देश ही नहीं पूरी दुनिया ने दुआ की, तो उनके साथ साथ पुनीत साहब भी हिट हो गए थे। फिर पुनीत साहब के बहुत से जलवे देखे, आज एक नया जलवा देखने को मिला, लास्ट डील में उनका बेटा लॉन्च हो रहा है, बहुत अच्छा है। हेल्थ हाइट दोनों बाप बेटे ऐसे लगते जैसे भाई भाई हों, ऐसी हेल्थ कुदरती मिली है, कुदरती लेकर आए हैं। तो फिल्म चले, हम चाहते एक फिल्म चलेगी, इसका पैसा आएगा, प्रोड्यूसर फिर 2 फिल्म बनाएंगे, फिर 90 और 90 180 परिवार चलेंगे, परिवार चलते रहें, चेहरे खिलते रहें, मुस्कुराहट बिखरती रहे। बस प्यार से देखिएगा ज़रूर, आ रही है लास्ट डील। अरे जब अपना बच्चा तरक्की करे तो अच्छा तो लगता ही है। और मेरे ख़ास दोस्त मित्र, मेरे भांजे और मेरे दोस्त, आज 35 साल का दोस्त है वो, उसका बेटा जो है वो लॉन्च हो रहा है, तो इससे ज़्यादा सौभाग्य क्या होगा। और बहुत खुशी हो रही है और हार्दिक शुभकामनाएं हैं उसके भविष्य के लिए। हमें बहुत उम्मीद है, क्योंकि हम इकट्ठे काम कर रहे हैं एक प्ले में जो कि पुनीत जी ने डायरेक्ट किया है महाभारत में, तो उसमें ये बच्चे ने कमाल का काम किया। उस वक्त मैंने बोला था कि भाई ये बच्चा तो बहुत आगे बढ़ने वाला है। बेसिकली क्या है, हार्ड वर्क इज द मेन थिंग, की टू इट। बाकी लक हमारे यहाँ बहुत काम काउंट करती है। आप हार्ड वर्क करेंगे, आप बहुत हो सकता है टैलेंटेड भी हो, लक ना हो, लेकिन अगर लक और हार्ड वर्क दोनों मिल जाते हैं तो फिर पारे न्यारे हो जाते हैं। पहली बात तो ये कहूँगा कि का टाइटल है लास्ट डील, और मैं चाहता हूँ इसकी इतनी सारी डील हो और ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हो। पुनीत जी का बेटा सिद्धांत लॉन्च हो रहा है, बहुत सारे कलाकार हैं, मेरे पास ईपी थे, रवि वो प्रोड्यूसर है भी इस फिल्म में। तो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, और जितना मेरा योगदान हो सकता है कोरियोग्राफी में मैं उतना करूँगा इसमें। अभी आज सुबह फर्स्ट टाइम मिला हूँ और देखने से बहुत सुना है मैंने बहुत बार कि थिएटर एक्टर है, अच्छे एक्टर है, अच्छे डांसर है, तो मौका मिलेगा ना। बस बहुत उम्मीदें होती है और उनके कंधे पे बहुत जिम्मेदारी होती है, तो मैं ये कहूँगा कि बहुत मेहनत करें, आगे काम करें, क्योंकि हमको नए स्टार की बहुत ज़रूरत है। नए स्टार्स आएंगे तो हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे काम उम्मीदें जागेंगी। बहुत उनके साथ मैंने गर्व डायरेक्ट कर रहे थे, मैं उनके साथ पूरी फिल्म मैंने की थी गर्व। तो पुनीत जी के साथ सिर्फ गर्व ने, उसके पहले कितने सारे गाने उसमें उन्होंने एक्टिंग की है, तो एक अच्छा रिश्ता जुड़ा हुआ।
तो मैं ऑल द बेस्ट बोलूँगा पुनीत जी, जो आपकी सारी उम्मीद है आपके बेटे सिद्धांत पूरी करें। सर अगर बात की जाए आज की हालात की, तो हमेशा एक्टर जो है बॉलीवुड जो है देश के साथ खड़ा रहा है, देश के रिश्तों की हमेशा उसने रिस्पेक्ट की है। आज जो बातें चल रही हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से कि इंडिया के आर्टिस्ट को बैन कर रहे हैं, उनकी ऐड को कितना बड़ा। देखिए, मैं कलाकार हूँ, मैं अपने हिंदुस्तान का कलाकार हूँ, मैं अपने हिंदुस्तान में हूँ और मैं मेरे जितने हिंदुस्तान कलाकार जो बोलेंगे उनके साथ रहूँगा। जो हमारे नेता जो अच्छा सोचेंगे वो करेंगे। तो मेरे जैसे कलाकार हमको जो बेस्ट लगता है, जो हमको करना है वो हम करते हैं। बीइंग एन एक्टर, बीइंग बॉलीवुड एक्टर, अक्सर देखा जाता है कि इसके पहले जो हालात थे, अक्सर पाकिस्तानी एक्टर्स को बॉलीवुड से भी सपोर्ट मिलता रहा। जब यहाँ पे कोई किसी तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है या कुछ, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो मुझे इतना कुछ पता नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी कलाकार हूँ। बस थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। पानी प्यास लग गई। क्या मैम कैसे कास्टिंग हुई, कैसे फिल्म हुई और क्या होने की क्या तैयारियां हो रही हैं फिल्म के रिगार्डिंग? पहले मैं बोलूँ? हाँ, ये कोई भी बोल सकता है। कैसे पहले ये बताना चाहूँगी कि ये कास्टिंग कैसे हुई। मैं एक मूवी रिलीज़ हुई थी रिसेंटली, मुश्किल, उसके इवेंट में गई थी बिकॉज धारिया सर हैं वहाँ पे, उनके कुछ सॉन्ग्स किए उनके साथ में। मैं पंजाबी इंडस्ट्री में भी काम करती रहती हूँ, काफ़ी सॉन्ग्स किए हैं अच्छे सिंगर्स के साथ। तो वहाँ पे सर भी गए हुए थे। सर ने मुझे देखा तो सर को लगा कि हाँ ये इस कैरेक्टर के लिए ठीक है। मेरे पास आए, बोले आप एक्टर हो, मॉडल, कैसे दोनों एक्टिंग कर लो। सर कल आ जाइए ऑफिस में। तो नेक्स्ट डे गई, ऑडिशन लिया, बस शाम को बोला हम बताते हैं आपको। आई वॉज लाइक ओके। अभी बहुत सारे लोग होते हैं ना कि मतलब आप विश्वास नहीं कर सकते आपका ऐसा कुछ है, आप फाइनल हो गए फोन करके। अच्छा सच्ची बोल रहे हो? बोले हाँ। तो उसके नेक्स्ट डे गई, एग्रीमेंट हो गया। अब सब अच्छी प्रिपरेशन चल रही है, वर्कशॉप चल रही है, दोनों टाइम मेरा वर्कआउट चल रहा है बिकॉज मेरा एक कैरेक्टर है, उसमें कपड़े थोड़ा यू कैन सी लाइक जो मैंने पहना हुआ है उसके अकॉर्डिंग है। तो पहली फिल्म है, नर्वस भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ और भगवान को थैंक्स बोलना चाहूँगी उनकी वजह से। सर पिछली जर्नी और कुछ अनकैनी इंसिडेंट रहे हों या कुछ बताना चाहेंगे? अनकैनी इंसिडेंट अबाउट द फिल्म? वैसा तो कुछ नहीं है, वेरी सिंपल तरीका है यार। मैंने एक शॉर्ट फिल्म किया था, तो उसका जो शॉट्स देख के सर को पसंद आए थे, तो इन्होंने मुझे बुलाया, तो कहानी सुनाएंगी। तो सर को मुझे कहानी सुनाते सुनाते जो हुआ, आई वो स्टार्टेड इमेजिनिंग एंड आई फेल्ट थ्रिल्ड अबाउट द कैरेक्टर। तो सर को देख के सारे एक्सपीरियंस्ड गाए, तो उनको देख के समझ में आया कि आई कैन देख के ही समझ आ गया सर को। एंड मैंने सर को पूछा व्हाट मेड यू फील सर, आप ऑनेस्टली बताना कि आई कैन प्ले द कैरेक्टर, योर सॉफ्ट लुक एंड योर। मैं जब एक आर्टिस्ट से बात करती हूँ, उसके तौर तरीके, इन चीज़ों से जांच लेती हूँ, तो लेता हूँ सॉरी तो इन चीज़ों से जांच लेता हूँ कि इफ़ ही और शी कैन प्ले द कैरेक्टर और नॉट। तो आगे की तैयारियां हम लोग बहुत सारे सेशंस कर रहे हैं साथ में विद को एक्टर्स एंड बहुत सारे जिमिंग कर रहे हैं। बहुत अलग मिलेगा देखने के लिए। हमें मैं इतना टाइम से यहाँ थी, सोचती थी नहीं ये नहीं करना, आई एम रियली वेरी चूजी, लाइक ये नहीं करना वो नहीं करना, पर सर ने मुझे इस तरीके से स्टोरी बताई, मुझे लगा कि कर लेना चाहिए, जो भी है छोड़ो। एंड थोड़ा बोल्ड है, कई बार हम लोगों को लगता है कि हमारी फैमिली कि हम लोग, आई एम फ्रॉम यूपी एक्चुअली, सो मैंने कहा फैमिली क्या सोचेगी बट मैं मम्मा को बताया, मम्मा ये स्टोरी है, ऐसा ऐसा ये है, करनी चाहिए। मम्मा वाज लाइक कर ले, सोच नहीं, है ना। सो अच्छा है, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, इंटरेस्टिंग, आई एम एक्साइटेड, आई एम रियली, मतलब अंदर से डर भी रही हूँ कि कैसे होगा, बट या हम कर लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज का वो दिन है जिसके लिए पिता पूरी सारी जिंदगी इंतजार करता है। क्या डूम्स आपने सिद्धांत को बताया कि बेटा ये मत करना, ये जरूर। मैंने कहा ना आपसे जी, बहुत आवश्यक है हमारी इंडस्ट्री में। हमारी इंडस्ट्री का अगर आप इतिहास उठा लें तो अच्छा इंसान होना सर्वप्रथम है। यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। सो बेटे, आप ये अगर ये लाइन चूज़ कर रहे हैं, इस लाइन में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू हैव टू लर्न, जो आपने जो करना है, आपने विनम्र रहना है। एंड यू सी व्हाट यू गेट।
जो आपने बोलना है सच बोलें, पोलाइटली बोलें और आप टाइम पर जाएं, क्योंकि अगला जो आप पे पैसा लगा रहा है वो उसका आप आदर करें, बहुत ज़रूरी है। तो एक समय पर जाना बहुत ज़रूरी है, टाइम और जो आपको मेहनत मिले आपने पूरी मेहनत करनी है, 100% मेहनत करनी है। यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड बिकॉज देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क नेवर बोलते ना, इट नेवर गोज वेस्ट। सो आपको अगर कलाकार बनना है, अपनी आवाज़ पर काम करिए, अपने तलफ़ुज़ पर काम करिए, स्पीच डिक्शन पर काम करिए। 3 साल से वो स्पीच डिक्शन मेरे साथ में उसने किया। उसके बाद 5 साल से वो थिएटर कर रहा है, तो थिएटर कर रहा है। प्लस मेरा एक प्ले आ रहा है, उसका नाम है महाभारत एंड एपिक टेल, उसमें यंग दुर्योधन प्ले करता है। 14 सितंबर और 15 सितंबर को बॉम्बे में हम लॉन्च कर रहे हैं उस प्ले को। हमारे 23-24 शोज ऑलरेडी हो चुके हैं 5 महीने के अंदर। अब हमारा सिल्वर जुबली शो है, तो उसमें यंग दुर्योधन बनता है वो। तो स्टेज में करने से उसकी जो स्टेज फ्राइट जो था ना, कैमरा, तो ही इज़ अ ट्रेन्ड एक्टर। नॉट उसने पता नहीं नीरज कावी भी कर चुका है, बैरी जॉन भी कर चुका है, पता नहीं 10-15 सब कोर्सेज कर चुका है, फिर थिएटर शुरू किया। तो जो ये 8-10 साल से वो बच्चा लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है। इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। ये जो हमने जो महाभारत जो प्ले है उसका स्टोरी स्क्रीन पे ही है, वी हैव रिटन इट टुगेदर। इज अ 95% स्टूडेंट, वे ऑलवेज टॉपर रहा है स्कूल में। उसके बाद में सलमान के लिए हम बना रहे हैं गामा, दैट स्टोरी स्क्रीन पे डायलॉग्स हैव बीन रिटन बाय हिम एंड मी। तो ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। और सबसे बड़ी डेफिनेटली फॉर मी इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट, ये बेटा लॉन्च हो रहा है। और सबसे और ज़्यादा खुशी की फ़क्र बात यह है कि खुद उसने बंदा बलबूते पे जाकर खुद किया, वेंट ऑडिशन किया एक नॉर्मल एक स्ट्रगलर की तरह। फिर उसका ऑडिशन लोगों को पसंद आया, बुलाया, फिर उन्होंने कहा हम आपको लेना चाहते हैं इस रोल में। फिर उसने कहानी सुनी, कहानी सुनने के बाद उसने डैड, मुझसे कहा कि डैड मैं चंडीगढ़ में शूट कर रहा था कि डैड मैं एक फिल्म आई, मैंने उसको सुना और मुझे अच्छा लगा और मैं कर रहा हूँ और आई वांट टू डू दिस फिल्म। बेटा अगर आपको अच्छा लगा है आप ज़रूर करो, दैट्स इट। जितने बेहतरीन आप एक्टर हैं उतना ही आपको सर्वोपरि ज्ञान आपको डायरेक्शन का भी है। हाँ जी, गर्व आई थी, लोगों ने बहुत प्यार मिला था। डोंट यू थिंक कि सनी साहब करण को लॉन्च कर रहे हैं, कहीं गलत हाथों में ना चला जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। देखिए क्या होता है कि हर पिता चाहता है बेटे का अच्छा हो। तो मेरा ये मानना है कि यू आर एन एक्टर। अगर देखिए क्या होता है, मेरा ये मानना है जी, कोई सुपरस्टार का बच्चा नहीं चलता, वो बच्चे में खुद में हुनर होगा तो ही चलेगा। आज अगर सनी देओल सुपरस्टार बना है तो उसमें काबिलियत थी, तभी 3 नेशनल अवार्ड ले चुका है। संजय दत्त फॉर एग्जाम्पल, दे हैव बिकम स्टार्स बिकॉज दे वर देमसेल्व्स गुड, अच्छे थे। आप समझ रहे हैं? आप तो देख लीजिए, आप रणबीर कपूर को देख लीजिए, आप करीना कपूर को देख लीजिए, आप करिश्मा कपूर को देख लीजिए। अब तो ये भी तो स्टार किड्स थे। बट मुझे कहने का मतलब है, अगर आप अच्छे कलाकार हैं और आप अच्छे इंसान हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका वो तो अपने आप आएगा सामने। तो एक फन बहुत आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। तो आई सेड बेटा, एंड यू जस्ट डू योर हार्ड वर्क, बाकी लेट्स लीव इट अप टू गॉड, तो ईश्वर पे छोड़ दो। सर ये तो हमने देखा है कि आपने बहुत सारी एडवाइसेस दी हैं सिद्धांत सर को, लेकिन वो कौन से गुण हैं जो ऑलरेडी उनके अंदर आपके आए हैं और आप नोटिस करते हैं कि मेरा जो मुझे लगता है कि जो मेरा जो दैट एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन, ही इज़ अ वेरी फोकस्ड बॉय, अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय। बिकॉज मैं ये महाभारत का प्ले करता हूँ, उसका एक सीन है, वो हर रोज़ प्रैक्टिस करता है उसकी, हर रोज़ एज अ वॉइस मॉड्यूलेशन के तौर पे उसका रियाज करता है। और जब शो तक किसी से बात ही नहीं करता, अपने शो में ही डूबा रहता है। ही डज दैट। सो दैट इज़ वन थिंग विच इज़ ही हैज़ टेकन फ्रॉम हिज फादर, हार्ड वर्क। अच्छा, हार्डशिप से नहीं डरता और मेहनत, दैट वन थिंग। एंड द बेस्ट पार्ट यू हैव सीन, ही इज़ अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन बॉय, दैट्स वन थिंग वेरी गुड। तो मैं समझता हूँ मेरी जो धर्मपत्नी ने जो सीख दी है कि बेटा इंसान अच्छा बनना चाहिए, यू हैव टू बी पोलाइट टू पीपल, टू योर कलीग्स, टू योर स्टाफ। तो ये सब चीज़ें जो हैं उसमें आई हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट ही हैज़ टेकन द राइट थिंग्स। यू नो, समटाइम्स हम जब थे तो जी हम तो बिल्कुल मतलब ग्रास रूट से -100 से शुरू किया था। हमारे तो खाने पीने के अपना बांधे थे, हम तो ऐसे आए हैं, हम तो बहुत ही मतलब गरीबी से उठे हैं धीरे धीरे। तो हमने 40 साल में सीखा है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो डेफिनेटली बेटा ये देखो, इस इंडस्ट्री में रहोगे आपको पोलाइट रहना है, बिल्कुल प्यार से बात करनी है लोगों से और मेहनत से कतराना नहीं है। जो भी, क्योंकि अगले के समय का आपको आदर करना है।
अगला पे पैसा लगा रहा है, एक तो टाइम पे जाओ और मेहनत करके जाओ, घर पे होमवर्क करो। तो एज अ पिता मैं यही सीख दे सकता हूँ अपने बच्चे को, तो वो दिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगा और यही मिलेगा। चाहे महाभारत हो या अशांत हो, अक्षय कुमार जी के साथ कोई भी एक किरदार जो आपके दिल के बेहद करीब हो, आपको यू विश कि यार ऐसा सिद्धांत को कभी ऐसा कुछ करना लाइफ में? नहीं, बहुत ही आपको जी मैं बता रहा हूँ, मैंने तो जो स्पीच एंड डिक्शन किया वो देखिएगा। मैं काश आप ये महाभारत का शो आके देखिए, ये 14 सितंबर को जो करेगा वो एक सीन करता है, एक सीन व्हेन ही प्लेज अ यंगर दुर्योधन, यू हैव टू सी हिम टू बिलीव कि माय गुडनेस ही इज सो टैलेंटेड, इतना हार्ड वर्किंग। तो वो तो आप देखेंगे, तो वो करेगा, वो बहुत बढ़िया इंटेलिजेंट लड़का है, उसकी ज़बान पे उसका कंट्रोल है, उसकी आवाज़ अच्छी है, तलफ़ुज़ बहुत बढ़िया है। सर आई विश हिम ऑल द बेस्ट। एक लास्ट सवाल और, यूँ तो आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं अपने बच्चे को, सख्त कितना रहते हैं उनके साथ, कितना डांटते हैं, कितना आपको मैं बताऊँ कि हमारे घर पे ना वी आर लाइक फ्रेंड्स, क्योंकि मैं प्लस एट द सेम टाइम एक वो पर्दा भी है, एक वो लक्ष्मण रेखा भी है। हम पिता पुत्र हैं, हम जूते शेयर करते हैं, हम घड़ियाँ शेयर करते हैं, बेल्ट शेयर करते हैं, तो कहने का मतलब, बट एट द सेम टाइम वो जो एक पिता पुत्र की मर्यादा कभी भंग नहीं की, और मुझे कभी डांटना नहीं पड़ा उसे। वो जानता है कि भाई ये चीज़ जो है ये नाबाजी, ये नागवार होगी, ये शायद मेरे पिताजी को पसंद नहीं आएगी। और वो कई बार किसी में से पूछते हैं कि आप ये डरते हैं पिताजी से? बोलते नहीं, मैं डरता नहीं हूँ, मैं उनका प्यार नहीं खोना चाहता, कि मैं उनकी इज्जत करता हूँ, उनको प्यार करता हूँ, तो मैं कोई गलत काम क्यों करूँ जिससे मेरे पिता मेरे से नाराज़ हों, तो हमारा प्यार क्यों कम? सो दैट इज़ दी अपब्रिंगिंग आई हैव कम विद। और मेरे पिताजी ने भी मुझे यही सिखाया था, तो मैं तो यही सिखा सकता हूँ कि बेटा हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, भगवान ईश्वर आपको सफलता देगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद, ब्लॉकबस्टर रही है और शुभकामनाएं। थैंक यू जी, धन्यवाद, थैंक यू।